ये बाद में ना calling it. Yes, Sri Ramesh Chenitala, sir. Sri Ramesh Chenitala. इसका बाद में calling attention important. No, आपका मौका मिलेंगे इसका बाद. Calling attention का बाद. इसका बाद में आ जाएंगे ना calling attention. आपका हो जाए. आपका ये तो बहुत लंबा है. इसका बाद. बोलो. Calling attention का बाद में. Speaker sir, I call the attention of the Minister of Defence to the problems being faced by the ex-servicemen and step taken by the government in this regard. Therefore, Yes, the minister. No, the minister. There is no minister. no minister. Where is the minister, sir? No, please. Statement. No, please. What's wrong with it? No, please. No, this is a serious matter, please. Sir, I had the question over in राजू सिंह, आपका रनिंग कमेंट्री बहुत ज्यादा हो गया हाउस में. ये ठीक नहीं है. आप सीनियर मेंबर भी था. नो अंतिम दिन को ऐसा करेंगे. Sir, I'm sorry for any inconvenience that has been caused to members, sir. I had question hour in the other house, and as soon as the question hour got over, I have walked straight into the house. Okay. But has the call attention been called? Okay. Yeah. Statement of Sir, about 55,000 defense service personnel retire or are released from service every year. There are about 15 lakh ex-servicemen in the country today. The central and the state governments are jointly responsible for the resettlement and welfare of ex-servicemen and have undertaken a number of schemes and programs in this regard. There has been substantial enhancement in the pension of service personnel consequent upon the implementation of the recommendations of the 5th Central Pay Commission. The pension of all ex-servicemen who had retired before 1/1/1996 have been revised, and the pension of those who retired after 1/1/1996 raised. As a result of such revision of pensions, the defense pension budget for the year 2000-2001 has gone up to rupees 12,000 crore from rupees 4,948 crore in 1997-98. In order to provide re-employment opportunities to ex-servicemen in civilian departments, the central government have provided 10% reservation in Group C and 20% in Group D vacancies for them. In Defense Security Corps, 100% vacancies are reserved for ex-servicemen. In paramilitary forces, 10% vacancies of assistant commandants are reserved for ex-servicemen. In order to facilitate their re-employment, certain relaxation in educational qualifications and in prescribed maximum age limits for recruitment have been provided. The central public sector undertakings and nationalized banks
provide 14.5% reservation in Group C posts and 24.5% reservation in Group D posts. Most of the state governments, except the states of Bihar, Jammu and Kashmir, Kerala, and Meghalaya, and the Union Territory of Andaman and Nicobar, have provided reservation for ex-servicemen in state government jobs. It has not been possible to provide re-employment to all eligible ex-servicemen in the government sector because of shrinking job opportunities, and also because many ex-servicemen do not want to take up jobs away from their native villages or towns. In order to help them undertake self-employment ventures, they are given training in various trades, vocations, which are useful in civilian life before their release from services. There are schemes in collaboration with Small Industries Development Bank of India, National Bank for Agriculture and Rural Development, and Khadi and Village Industries Commission for providing financial assistance to set up small and village industries. Ex-servicemen are encouraged to float security agencies and transport companies. The Director General Resettlement sponsors ex-servicemen security agencies to provide security services to various public sector undertakings. Coal India and its subsidiaries give transport contracts to transport companies floated by ex-servicemen. The central government have a number of welfare programs for ex-servicemen, war widows, and their children. Some of the important programs are as follows. First, educational concessions. 35 war memorial hostels have been constructed in the various regimental centers to provide accommodation to wards of war bereaved and of disabled personnel to pursue their studies. The children staying in these hostels are given education grant. 25 seats in medical colleges and 1 seat in dental college and 2 seats in each of the IITs are reserved for the wards of service personnel killed or disabled in action or due to causes attributable to service. 25% seats in Sainik schools are reserved for the children of serving and retired service personnel. Second, travel facilities. The Indian Airlines gives 50% concession in airfare in domestic flights to recipients of gallantry awards of Paramveer Chakra, Mahavir Chakra, Ashok Chakra, and Kirti Chakra, and to the war widows of post-independence era. The railways give 2 free passes of first class and second AC to the recipients of the Chakra series of awards. War widows are given 75% concession in rail fare for travel in second class. Third, medical facilities. Ex-servicemen are allowed free outpatient treatment in military hospitals. To augment medical facilities for ex-servicemen and their families, 24 medical investigation rooms and 12 dental centers have been opened exclusively for them. Ex-servicemen are eligible for reimbursement of 60% of medical expenses under the medical insurance scheme for treatment of specified serious diseases. Those not covered under the medical insurance scheme are reimbursed medical expenses on treatment of specified serious diseases to the extent of 60% in the case of commissioned officers and 80% in the case of other ranks. 4, canteen facilities. The ex-servicemen and war widows can avail canteen facilities from the nearest CSD units or canteens. Most problems of ex-servicemen relate to matters within the purview of the state governments. Rajya Sainik boards at the state level and Zila Sainik boards at the district level have been opened to help ex-servicemen, war widows,
and members of their families in solving their problems. The state governments are requested from time to time to look into the problems of ex-servicemen. Mr. Chanitala. I'm sorry to say that the Honorable Minister for Defence has not addressed the very serious issues before the ex-servicemen in the country. Sir, ex-servicemen of the country have been suffering a great amount of injustice with regard to the pay, pension, and non-effective benefits, sir, and other facilities. Sir, in this August House, when Mr. Vishwanath Pratap Singh was the then Prime Minister, he agreed No, for you the... can seek the clarification. Yes, I am on the seeking. statement. Because statement has given by Sir, the Minister. yes. Sir, the one rank, one pension was the promise given by the then Prime Minister. And the fifth pay commission also recommended that. Sir, the Honorable, the Rashtrapati, the President of India also, in his speech, he also mentioned about the one rank, one pension. And the Honorable Minister for Defence, Mr. George Fernandez, on 13th April 1999 at Anandapur Sahib, he also declared that this one rank, one pension will be implemented by this government very soon. I would like to know from the Honorable Minister, why and what is the delay for implementing the one rank, one pension scheme, which is heartening thousands of ex-servicemen in our country, sir. Sir, and regarding the disability pension, is one of the very serious issue. Sir, in spite of the fifth pay commission's recommendation, the disability pension scheme has not been implemented. And sir, the extension of Kargil type facilities and grants to the affected defense personnel of wars from 1948 to 1971. This is it's a genuine demand. I would like to know from the Honorable Minister whether this government will accede to this demand. Sir, one shocking incident reported in the newspapers that the Kargil fund, the major is a considerable amount from the National Defence Fund has been transferred to the Prime Minister's Relief Fund. Sir, if it is true, it is shocking. So I would like to get a clarification from the Honorable Minister whether the people's contributions, sir, the people had contributed generously for the Defence Fund. It is not proper to divert any amount from that fund to any other, for any other purpose. So, sir, and lastly, sir, there are two other issues also. One is the medical facilities. Sir, the ex-servicemen in our country are facing a lot of problems in getting proper medical facilities in the military hospitals. They will not get priority. The serving people definitely will get the priority. So it is the need of the hour to strengthen the facilities in the military hospitals so that these ex-servicemen will get proper attention from the attention. So, and the reimbursement also is a major issue, sir. Lastly, sir, the Singdev committee, which has been appointed earlier and submitted a report in this house in 1984, and it recommended for a national commission for ex-servicemen. Sir, the Honorable Jaswant Singh, now is a Minister for Defence, External Affairs, is also a member, was a member in this committee. Sir, it has been well accepted that yes, national commission for ex-servicemen is very much needed. I would like to know the Honorable Minister's response in this. And sir, lastly, there is the unemployment problem of the ex-servicemen can be sorted out through creating more territorial army units in the different parts of the country. And they can be entrusted with the work of eco-development and other activities. So I would like to know from the Honorable Minister whether the government will prepare to have more and more units of the territorial army to give employment to these ex-servicemen in our country. Okay. Thank you, sir. Mr. Rashid Alvi. सर, इस देश के अंदर एक्स सर्विसमैन की बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं
और मंत्री जी ने जो जवाब दिया है वो बहुत सेटिस्फैक्ट्री नहीं। उनके मंत्री बनने के बाद हमें ये उम्मीद थी कि एक्स सर्विसमैन की जो प्रॉब्लम्स हैं वो हल होंगी, लेकिन ज़्यादातर प्रॉब्लम्स अभी तक बाकी। मैं मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि जैसे कि उन्होंने अपने जवाब में कहा है कि हर साल 50,000 से 60,000 तक डिफरेंट जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके लोग रिटायर होते हैं, उसमें सीपीओ, बीएसएफ, सीआरपीएफ के अलग-अलग क्या परसेंटेज है, कितने लोग रिटायर होते हैं। इसके साथ साथ मैं मंत्री जी से ये भी जानना चाहूँगा कि क्या ये सही है कि 1979 ऑनवर्ड्स आर्मी के अंदर शॉर्ट सर्विसेज ऑफिसर्स जो हैं वो 50% से बढ़ गए, 55% हो गए, और प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेने में उन लोगों की ज़्यादा दिलचस्पी। अगर ऐसा है तो क्यों है, और क्या ये सही है कि दिन ब दिन उनकी तादाद बढ़ती चली जा रही है। इसके साथ साथ मैं मंत्री जी से ये भी जानना चाहूँगा कि अभी कारगिल वार के बाद सारे देश ने देखा है और सारे देश से ये कहा गया था कि वो मदद करें पैसे से और कोऑपरेट करें सरकार के साथ, लेकिन ये देखने में आया सर कि जनता के लोगों ने डायरेक्ट आर्मी वेलफेयर एसोसिएशन को मदद करना ज़्यादा पसंद किया कंपैरेटिवली नेशनल डिफेंस फंड और प्राइम मिनिस्टर्स फंड। इसका मतलब ये है कि क्या जनता का विश्वास, जनता का यकीन प्राइम मिनिस्टर्स फंड और नेशनल डिफेंस फंड से घटता जा रहा है? इसके बारे में भी मैं मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि उनकी क्या मालूमात है और कितना सही है। इससे आगे मैं कहना चाहूँगा सर, जो लोग रिटायर होते हैं, जो रिलीज़ होते हैं, वो ज़्यादातर सिक्योरिटी ऑफिसर्स बन जाते हैं। किसी के घर पे बंदूक लेके खड़ा हो गया, पब्लिक सेक्टर के अंदर, प्राइवेट सेक्टर के अंदर, बैंकिंग के अंदर, कॉरपोरेशंस के अंदर उनका ह्यूमिलिएशन होता है। जो लोग देश की रक्षा करते हैं, सरहद पे खड़े होते हैं, अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार होते हैं, रिटायरमेंट के बाद वो बैंक के अंदर, कॉरपोरेशंस के अंदर, प्राइवेट सेक्टर के अंदर उन्हें सिक्योरिटी गार्ड बना दिया जाता है। और जो लोग ये काम कर रहे हैं, मंत्री जी ने अपने जवाब में भी कहा है कि वो इनकरेज करते हैं उन लोगों को जो रिटायरमेंट लेते हैं कि वो इस तरीके का बिजनेस करें और लोगों को रिक्रूट करें। मैं मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि मेरी इत्तला है कि तकरीबन 200-300 करोड़ रुपया हर साल वो ऑर्गेनाइजेशंस कमाती हैं और उन लोगों को परेशान करती हैं, एक्स सर्विसमैन, उनसे नाजायज़ पैसा लेती हैं। इसके साथ साथ ये भी शिकायत है कि फेक सर्टिफिकेट्स बना देती हैं। जो एक्स सर्विसमैन नहीं है उन्हें एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट देके उनको एम्प्लॉय कर देती हैं। तो क्या सरकार ऐसा सोच रही है कि अपने पैमाने पे कोई ऐसा लाइजन ऑफिस बनाए कि उसके ज़रिए से ये सारा रिक्रूटमेंट हो? और इसके साथ साथ सर, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि पूरे देश के अंदर तकरीबन 33 ऑर्डिनेंसेस फैक्ट्रीज हैं जिसके अंदर एक बड़ी तादाद में लोग काम करते हैं, जिसका बड़ा बजट है। तो क्या मंत्री जी ये नहीं कर सकते, सरकार ये नहीं कर सकती कि ये जो एक्स सर्विसमैन है उनको उन जगह के अंदर एब्जॉर्ब किया जाए, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंदर उसमें जगह दी जाए? और सर नहीं सर, अभी मुझे बड़ा इंपॉर्टेंट बात सर, ये 1 मिनट में और लूंगा सर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट मैटर। सर अभी तक ये होता था कि आईएएस सर्टेन रिजर्वेशंस था कि एक्स सर्विसमैन को सिविल सर्विसेज के अंदर और प्रोविंशियल सर्विसेज के अंदर, ब्यूरोक्रेसी ने बड़ी खूबसूरती के साथ उसको ख़त्म कर दिया। अब जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए कोई रिजर्वेशन सिविल सर्विसेज में और प्रोविंशियल सर्विसेज के अंदर नहीं। उनका सिविल सर्विसेज के अंदर रिजर्वेशन होना चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट्स को डायरेक्ट करना चाहिए कि उनकी बड़ी तादाद एब्जॉर्ब करें। सिर्फ राजस्थान गवर्नमेंट ऐसी है सर कि जिसने थोड़ा बहुत, सर मैं पूरी बात तो कोई रूल पोजीशन इज वेरी क्लियर, यू कैन सीक ओनली क्लैरिफिकेशन स्मॉल कि कितना टाइम कैसे मिस्टर बरा सर ये बीजेपी वाले बोलने नहीं देते। नो प्लीज। और सर मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, अगर ये कहना चाहते हैं, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट गो थ्रू द रूल्स फर्स्ट। व्हाट इज दिस? इजाजत तो दीजिए। ये कॉलिंग अटेंशन है ना, भाषण कैसे? कॉलिंग अटेंशन में मैं कोई इररिलेवेंट बात तो नहीं कर रहा सर, मैं तो एक एक मुद्दा उठा रहा। तो सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके साथ साथ मेडिकल के बारे में जो आपने कहा, इसके अंदर एक कमेटी बनी थी हेडेड बाय लेफ्टिनेंट जनरल एन फॉयली,
उसकी रिकमेंडेशंस कितनी इंप्लीमेंट कर रहे हैं, कितनी इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि ट्रीटमेंट के लिए बिटवीन सर्विंग क्लास और एक्स सर्विसमैन देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन। उनका एक तरीके से ट्रीटमेंट होना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी के लोग तो उनका नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं। कारगिल की लड़ाई में ऑफिशियली इन्होंने कहा था कि आने वाले चुनाव में हमें इसका फायदा हो। इनकी दिलचस्पी इस बात के अंदर नहीं है कि उनको फायदा पहुंचाया जाए, इनकी दिलचस्पी चुनाव के अंदर रहती है। Thank you. This is a very important matter on which we have called the attention of the government. In the statement given by the Honorable Defence Minister, I would like to give some very concrete suggestions, because I come from a state from where a very prominent role has been played by the ex-servicemen for the country's integrity and its nation's pride. So firstly, I would like to ask the Honorable Defence Minister in this regard that in pre-independence era, the defence personnel were getting much higher rates of pension, ranging from 70 to 100% of their pay as compared to civil servants, including the ICS at that time, who got pensions between 40 to 50% of the pay. So isn't it the irony of fate that those Jawans and those officers who sacrifice for this nation, they are being discriminated against? On the second point, sir, I would also like to inform him, although the Honorable Minister knows about it, that the death come retiring gratuity sanction for the civil employee was introduced in 1950, whereas defense personnel got their benefit only in 1970. So I think this should also be looked upon, because this is a very big, I think, discriminating factor. Honorable Speaker, sir, I will only make 1 or 2 points. I will not waste time of the House. This being an important matter, the JCOs and officers who have been reduced under the false plea of civilian control over the defense services. The civilian control really means political control and not that of a bureaucratic control. So this has been forced upon the defense personnel. So I think the defense minister should also look in this matter. Honorable Speaker, sir, this is a very important point which I would like to highlight before the House, that a country Jawan who handles such sophisticated weapons which our defense personnel are using at the borders. Now they handle Agni, my honorable friend and a very seasoned parliamentarian is also suggesting that a Jawan is rated below a chaprasi of the government of India. And I would quote the figure that he gets a pension of only 2100 to 2200, means a chaprasi who's in the government of India. But the Jawan who gets the basic minimum pension of only rupees 1275. This is a big discrimination and the minister should look into it. Now about the family pension, sir, my last 2 points, Honorable Speaker, sir. As a result of the facts stated in this statement, the widows get only 20 to 24% of the pension as compared to the civilian counterparts who get 30% family pension. So why this discrimination against the widows of the Jawans and the ex-servicemen who have sacrificed for the nation? Honorable Speaker, sir. The last point which my dear friend and my colleague Ramesh Chanithala had made, I would like to repeat by adding 1 line to it, that government has been generous because in the Kargil war, which has brought pride to the entire nation, and the entire nation was won on that, there was no difference of any political party or any issue. But as far as the Kargil martyrs are concerned, those who suffered similarly during the 47, 62, 65, 1971 war, this this benefit should be given to those in this regard. And lastly, sir, I would just like to request the Honorable Defence Minister regarding these 5 points in my conclusion. That 1 rank, 1 pension you announced at a historic place of Anandpur Sahib, where 3 centenary celebration of the Khalsa were being celebrated. And before the Guru Granth Sahib, you announced that 1 rank, 1 pension will be given. And still you have not implemented that. You must implement that to satisfy 15 lakh ex-servicemen who are there in the country. And enhancement of family pension, proper medical care, increase in
disability pension, provision of alternative jobs, and lastly, a finance development corporation for the ex-servicemen. With these words, sir, I thank you very much. श्री प्रकाश जायसवाल, श्री अध्यक्ष प्रकाश महोदय, जायसवाल। अध्यक्ष महोदय, अब इंतजार हमें तो नहीं कर सकते। आपने कहा था प्रश्नकाल के तुरंत बाद आप हम आप ये प्रोसीजर है ना, इसका नाम है ना, कॉलिंग अटेंशन का बाद में है ना। माननीय अध्यक्ष जी, एक्स सर्विसमैन की समस्याओं के बारे में माननीय रक्षा मंत्री जी ने जो बयान दिया है, क्या बुलवा रहे हैं यहाँ लोकसभा? वो बयान पूरी तरीके से संतोषजनक नहीं है, ऐसा हमारे सारे सदस्य भी कह चुके हैं। मैं आपका ध्यान केवल 2-3 मुद्दों पर ही आकर्षित करना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, एक्स सर्विसमैन को जो मेडिकल फैसिलिटी मिलती है वो केवल आर्मी हॉस्पिटल में मिलती है। आप जानते हैं कि आर्मी हॉस्पिटल केवल उन शहरों में होता है जहां कंटोनमेंट बोर्ड होते हैं, वरना आर्मी हॉस्पिटल होते नहीं। 200-200, 300-300, 400-400, 500-500 किलोमीटर जाना पड़ता है एक सर्विसमैन को अपने इलाज कराने के लिए, क्योंकि सर्विस के बाद जब वो रिटायर होता है तो अपने नेटिव प्लेस पे रहता है। मैं आपके माध्यम से रक्षा मंत्री जी से ये मांग करता हूं कि कम से कम एक सर्विसमैन को अपना इलाज कराने के लिए सिविल हॉस्पिटल में इलाज कराने की परमिशन दी जाए। अगर ऐसा हो जाएगा तो कोई भी एक सर्विसमैन किसी भी जिले में रहता होगा, गांव में रहता हो, कस्बों में रहता हो, सिविल हॉस्पिटल में जाकर वो अपना इलाज करा सकता है। मेरी दूसरी मांग यह है सर कि मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि एक्स रेलवेमैन को इस बजट में 461 करोड़ रुपए की व्यवस्था है एक्स रेलवेमैन के लिए, जबकि एक्स सर्विसमैन के लिए रक्षा के बजट में केवल 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। 120 से घट गया 100। वो भी पहले 120 था साहब, इस बार इस बजट में 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। कहां से एक सर्विसमैन का कल्याण हो पाएगा, कहां से उनको एक सर्विसमैन के लिए व्यवस्था हो पाएगी? इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि माननीय रक्षा मंत्री से कहें कि इस बजट की व्यवस्था को और बढ़ाकर कम से कम दूना कर दिया जाए। तीसरा साहब, अंत में मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट सर्विसेज में भी एक्स सर्विसमैन को स्थान मिलना चाहिए। धन्यवाद। Now the minister state. Just give me 1 minute, sir. Sir, please give me 1 minute. Sir, I'll be very brief. मैं सब माननीय सांसदों का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जो गैर सैनिक नहीं, गैर सैनिक हैं, फिर भी आपने और सबने हमारा पक्ष रखा है। सर, just 1 minute, sir. Yes, this is a क्या call. कर रही है? सर, डॉक्टरी में नाम लिया है तो क्या? असली बात है, राज्य सरकारें क्या कर रही है? ये इसके बारे में करती है। क्या राज्य सरकारें क्या कर रही हैं? जानना चाहता हूँ क्या राज्य सरकारों का पूरा काम है, उसके बारे में कोई बोल नहीं रहा। Kanduri, please. और दूसरा अध्यक्ष जी, जवानों की पेंशन के बारे में दो चीजें मुख्य हैं। एक तो 33 साल का जो काम है उसको खत्म होना चाहिए, और दूसरा जो Reply by the minister, please. No, reply by the minister. माननीय मंत्री जी, आप just want to tell you one thing. This will not go on. सदन का समय बर्बाद किया जाए। आप सीधा सीधा कहिए Kanduri ji, please. तो नहीं कर रही, क्या क्या कर रही? No, wait. ये सारी जो बहस है, ये है राज्य सरकारों का है जिम्मेदारी। No, please. This will. No, the minister's reply only. और ये बोला कि नहीं राज्य सरकारें करेंगी सब। अभी आप वरिष्ठ नेताओं ने सवाल उठाया है कि मैं नहीं बोल सकता। जब भी ये लोग कानून के खिलाफ बोलेंगे तो हम इनको नहीं बोलने देंगे। आप लोग याद रखिए, आप हमेशा कानून के खिलाफ बोलेंगे। आप लोग सुना करो। Kanduri ji, please. दबाव दीजिए। No, please. This will not go on record. No, please. No, please take your seat. Please. Then allow in every call attention, I don't mind. You, Mr. Chatterjee, you No, please. No, the minister, please. Kanduri, please, take it. No, take it. I deny, sir. Kanduri, please. No, If you please. allow this sort of this sort of circumvention, allow it. No, please. Kanduri, please take your seat. Now the minister. Must allow in every. No. No, what is this? No. उन्होंने तो क्या बिगड़ गया? Now the minister. आपने जो बात कही वही बात
गांधी प्लीज, आप बैठ जाइए ना, ना आप बैठ जाइए ना, नो 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 Kanduri please, no please, no. I am getting very upset. You are trying to give me rules and you violate rules every day. No please, Abhay. No, this will not go on record. No, they are. I already told. No, I have already told this will not go on record, please. I said I do not mind if he is allowed, then allow it in every case. No, Abhay, please. I said allow it in every case. Mr. Gandhi, please. I said don't make it. Now the minister. I said if Kanduri Sahib is allowed, do it in every case. No. Why don't you talk to the Prime Speaker and say that? Mr. Kanduri, please. You can't do such a question. Sir, yes. No, please. No, बैठ जाए, please. No, the minister. अध्यक्ष, No, there is a procedure है ना, rule है ना. No, कैसा अभी नहीं calling attention में देना. अभी नाम नहीं देना ना, calling attention में देना. Now the minister reply. No, this is a very important matter, please. What is this? No. अब बैठ जाए, please. No, बैठ जाए. Now the minister. अध्यक्ष, मैं जिन माननीय सदस्यों ने ये ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया उनका बहुत ही आभारी हूँ। आभारी इसलिए हूँ कि भूतपूर्व सैनिकों के प्रश्न पर और उनकी समस्याओं का हल करने के मामले पर सदन में कुछ कहने का एक मौका मिला, मगर उसके साथ साथ सदन की सहानुभूति कितनी भूतपूर्व सैनिकों के समस्याओं को लेकर है, ये भी सबके सामने स्पष्ट हुआ। हमें उस समर्थन की बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि समस्याएं जो हैं ये एक लंबे अरसे से पड़ी हुई ये समस्याएं हैं। पिछले साल 2 साल में निर्माण हुई परेशानियां समस्याएं नहीं हैं, और उनका हल अगर पिछले 50 सालों में करना मुश्किल हो गया तो उसे करने के लिए और ज़्यादा सहानुभूति और समर्थन की आवश्यकता है, ये स्पष्ट होता है। मैं सबसे पहले 1 रैंक 1 पेंशन की बात करूं। 1 रैंक 1 पेंशन की मांग हम रक्षा मंत्री होने के सालों के पहले से करते आए हैं, और सदन के भीतर भी वो मांग की है, सदन के बाहर भी वो मांग की है, लेकिन अनेक कारणों को लेकर जितनी भी सरकारें बनी तो उन्होंने इस मांग को स्वीकार नहीं किया। हमने एक ऐसा कदम उठाया कि जिसमें 1 जनवरी 1996 के पहले और 1 जनवरी 1996 के बाद, और 1 जनवरी 1996 के बाद का मतलब जो भी आज रिटायर होते हैं और 1 जनवरी 96 से जो रिटायर हो रहे हैं, इनके पेंशन में कुछ ऐसे सुधार लाए कि 1 जनवरी 1996 के पहले वाले लगभग 1 जनवरी 1996 के बाद वाले के बराबरी के हुए हैं। कुछ मामूली फर्क है, और हमारे तरफ से उस फर्क को भी मिटाने के लिए प्रयास जारी है। कुछ प्रस्ताव हमने तैयार किए हैं और उसे मंत्रिमंडल के सामने रखने का काम
शीघ्र ही हम करने जा रहे हैं। अध्यक्ष जी, हमारे मित्र रमेश चन्नीताला माननीय सदस्य ने करगिल के फंड को पीएम के रिलीफ फंड में डालने की यहाँ पर बात कही। एक मानी में तो आरोप ही लगाया और एक माननीय सदस्य ने कैसे सरकार का जो डिफेंस फंड है या प्रधानमंत्री का फंड है उस पर लोगों का विश्वास नहीं है, इसलिए आर्मी एसोसिएशन का फंड में लोगों ने पैसे दिए करके भी यहाँ पर बात कही। अध्यक्ष जी, जो भी पैसे करगिल के बाद आए वो 2 संस्थाओं के पास चले गए और रक्षा मंत्री के नाते हम तो लोगों से मांग करते ही थे और जब हमसे पूछा जाता था कि इसको हम नेशनल डिफेंस फंड में दें या तो आर्म्ड फोर्सेस सेंट्रल वेलफेयर फंड, आर्मी सेंट्रल वेलफेयर फंड, जो सेना का अपना वेलफेयर फंड है, उसमें दें करके हमसे जब पूछा जाता था तो हम आमतौर पर लोगों से कहते थे कि आर्मी का सेंट्रल वेलफेयर फंड में उसको दीजिए। और जहां भी लोग, कोई संस्थाएं या व्यक्ति या अखबारें जिन्होंने बहुत बड़ी इस कार्य में मदद की, अपने जरिए पैसे वगैरह जुटाकर मुझे वो पैसे लेने के लिए बुलाते थे, अगर उन्होंने पहले ही कुछ तय करके वो पैसे नहीं जुटाए हों तो वो आर्मी सेंट्रल वेलफेयर फंड को मैंने पहुंचाए। इस सब चीज के बावजूद नेशनल डिफेंस फंड को आई हुई रकम है 472 करोड़ 56 लाख रुपये, 472 करोड़ एंड 56 लाख। आर्मी सेंट्रल वेलफेयर फंड को आई हुई रकम है 262 करोड़, 260 करोड़ टू द आर्मी सेंट्रल वेलफेयर फंड। और नेशनल डिफेंस फंड की कोई भी रकम दूसरे किसी फंड को नहीं गई है। अगर गई हो तो आर्मी सेंट्रल वेलफेयर फंड को जो काम, जो उनका अपना कार्य होता है, जिसमें भूतपूर्व सैनिकों को भी कभी मदद करने का काम वो भी करते हैं अपने ढंग से, तो वो पैसा उस आर्मी सेंट्रल वेलफेयर फंड के तरफ जरूर गया है और कहाँ भी उसमें से एक पैसा नहीं गया है। तो इसलिए अगर किसी माननीय सदस्य के मन में नंबर 1 कि लोगों का विश्वास नेशनल डिफेंस फंड पर नहीं, जो पैसा जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री है और वो पैसा प्रधानमंत्री, उस फंड में गया हुआ पैसा फिर प्रधानमंत्री के कोई रिलीफ कोष में गया है, ये 2 चीज़ों को लेकर अगर किसी भी सदस्य के मन में कोई भी शंकाएं हो वो उन्हें अपने मन से निकालें, ये मेरा आग्रह है। अब अध्यक्ष जी, जो सुझाव यहाँ पर आए हैं उन पर जाने के पहले जो आज जो हम लोग कर रहे हैं समस्याओं को हल करने के दिशा में और एक अरसे की समस्याओं को हल करने के दिशा में, उस पर मैं कुछ रोशनी डालूं। माननीय सदस्य ने कहा कि पहले, माफ करिएगा, आज़ादी के पहले जो सेना में लोग थे उनको जो पेंशन मिलता था या उनको जो सुविधाएं आदि मिलती थी वो आज के दिन नहीं है। हमारे पास आज़ादी के पहले के दिनों का यहाँ कोई ब्यौरा इस समय नहीं, मगर माननीय सदस्य ने चूंकि इस प्रकार की बात यहाँ पर कही है, हम इसकी जांच जरूर करेंगे और इसकी जानकारी सदन को भी देंगे, माननीय सदस्य को भी हम भेजेंगे। लेकिन मैं इतना जरूर कहूं कि 1947 से
लेकर जो लोगों को चोटें लगने के चलते नौकरी से हटा दिया, जिनको अपने सेना से हट जाना पड़ा या युद्ध में मारे गए, उन्हें जो राहत दी जाती थी और वो भी नेशनल डिफेंस फंड से, वो अधिकारियों को दी जाती थी 1000 रुपये एक वक्त, ये नहीं कि हर महीना या हर साल, एक वक्त 1000। और जवानों को दी जाती थी 300 रुपये। जवान यानी जेसीओ, माफ करिएगा, जेसीओ को दी जाती थी 300 रुपये। और जो अदर रैंक्स हैं, जो जवान के बारे में बहुत हम सबके मन में प्यार है और उनको जितना भी हम दे पाए इतना देना चाहिए करके भारी इच्छा है, तो उनको दिया गया 200 रुपये। ये मरने के बाद है या ये चोट का है या मरने के बाद, ये शहीद होने के बाद का है? ये किस फंड से दिए जाते थे, कृपया रक्षा मंत्री जी ये बताएं। 1947 के पहले का मैंने बता दिया कि कुछ नहीं दिया जाता। 1947 के पहले कुछ दिया जाता था, नहीं जाता था, मैंने बता दिया कि हम उसकी जानकारी हासिल करके सदन के सामने रखेंगे। उचित नहीं है, मैंडेटेड फंड से जो रुपये दिए जाते थे वो पेंशन 100 रुपये दी जाती थी और भी अधिक उसके बच्चे को वजीफा दिया जाता था। ये आंकड़े आपके पास विभाग ने सही नहीं दिए। मैं इसको चैलेंज करने को तैयार हूँ, ये आंकड़े सही नहीं है। अगर अध्यक्ष जी मैं कोई भी बात गलत कही करके कोई सदस्य बता दे तो मैं अपनी गलती को दुरुस्त करूंगा। बिल्कुल ठीक है। और अगर हम कोई जानकारी से गलती, लेकिन ये गलत है, गलत प्रस्तुत किए जा रहे, तो बात तो सुनो साहब, आप दिन को रात कैसे कहोगे? प्लीज, हम कोई जानकारी के आधार पर जब कोई बात को यहाँ पर कहते हैं तो उसका अगर किसी सदस्य को तथ्यों के आधार पर खंडन करना हो तो वो जरूर खंडन करें। हमें उसमें कोई गलत चीज को यहाँ पर रखने की आवश्यकता है ही नहीं है, और अगर हमने कोई गलत बात कही हो तो उसका बचाव करने की भी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। आपको बताया नहीं कि ये चोट का है या शहीद होने? ये जी जो जिनकी जानें गई हैं और जो डिसेबल हो गए हैं, दोनों के लिए, दोनों के लिए। शहीद होने के बाद भी जी हाँ, जी हाँ। मैंने ये कहा कि ये 1962 की जो लड़ाई हो गई, उस लड़ाई के बाद की। ठीक है, अभी या उससे सुनिए ना, मैंने बताया उससे पहले भी राजस्थान में 25 बीघे जमीन, कहना दीजिए, 2000 रुपये और 25 बीघे इरिगेटेड जमीन दी है, उसकी क्या कीमत होती है? कहते हैं उसको गलत बयानबाजी हो रही है। अब अध्यक्ष जी, जो यहां पर सुझाव आया है कि लोगों, जवान और अधिकारी जो सेवानिवृत्त होते हैं उन्हें शॉर्ट सर्विस, माफ करिएगा, इसमें टेरिटोरियल आर्मी में भर्ती किया जाए। टेरिटोरियल आर्मी की जो संख्या है उस पर एक सीमा बांधी है। अगर ऐसा कोई भी प्रस्ताव हम लोग संसद ने कानून के जरिए बना दिया कि टेरिटोरियल आर्मी की संख्या बढ़ी जाए और उसके लिए पैसा आवंटित किया जाए, तो ये काम जरूर हो सकता है। और हम भी जरूर चाहेंगे कि अगर
जी। Territorial Army is 3 lakhs. It has never been subscribed to more than 50,000 in the last 50 years. नहीं, इसलिए मैंने कहा कि अगर कानून बन जाता है इस मामले पर कि टेरिटोरियल आर्मी में इन लोगों को सेना से हटते ही जाना चाहिए, और उसके लिए अगर पैसे आवंटन की बात हो जाती है तो माननीय सदस्य केपी सिंह देव जी ने जो बात कही तो वो भी उसमें पूरी हो जाती है। एक मजबूत टेरिटोरियल आर्मी भी बन जाती है और उसके लिए जो भी हम लोगों को पैसे की आवश्यकता है वो भी पूरी हो जाती है। आज का दिन जो टेरिटोरियल आर्मी है जिसमें संख्या पूरी नहीं होती है करके आपने कहा, उसके लिए कई कारण हैं, जिसमें से एक कारण यह है कि अनेक ऐसी सरकारी संस्थाएं हैं जो अपने कर्मचारियों को उसमें जाने के लिए जो छुट्टी देनी चाहिए वो छुट्टी, एक ही तो छुट्टी नहीं देती हैं, और कभी अगर छुट्टी दी तो फिर उनकी तनख्वाह देने पर उनको रोक देते हैं। तो ये कई उसमें समस्याएं हैं। इकोलॉजिकल आर्मी कितनी है? एक मिनट भाई, टेरिटोरियल इकोलॉजिकल आर्मी कितनी है कंट्री में? आपको क्या तकलीफ है? मैं एक महत्वपूर्ण बात पूछ रहा हूँ, टेरिटोरियल आर्मी इकोलॉजिकल कितनी है कंट्री में? रक्षा मंत्री जी कृपया बताएं। एक्स मिलिट्री मैन को सुविधा देने के बारे में बता रहे हैं और आप लोग हंगामा कर रहे हैं उधर। एक्स मिलिट्री मैन के खिलाफ है आप लोग? अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य की परेशानी को मैं इन बातों से दूर करना चाहूँगा कि मैंने जो पुरानी बातें कही उनमें और आज में क्या अंतर है ये बताकर, ताकि प्रश्न आज जो लोग हैं उनको हम लोग किस तरह से देखेंगे, करगिल हुआ उससे जो लोग निकल आए हैं तो उनको किस तरह से हम लोग उनका क्या देखभाल हम लोग करेंगे। तो प्रश्न तो मूलतः ये है। अध्यक्ष जी, जो जवान या जो अधिकारी मारा गया तो उनके लिए 10 लाख रुपए का एक्स ग्रासिया, जी हाँ, करगिल के बाद 10 लाख रुपए का एक्स ग्रासिया का इंतजाम किया। इसके अलावा जी हाँ, 1000 रुपये से 10 लाख जी, ये 10 लाख कब लागू हुआ? ये लागू हुआ करगिल से। कारगिल के बाद 10 लाख? करगिल के बाद नहीं, कारगिल के बाद 10 लाख? जी हाँ, सुधार लीजिए, सुधार लीजिए। 10 लाख का हमारा प्रस्ताव था, 7.5 लाख पहले हो गया था, 2.5 लाख और बढ़ाया। ये सुधार लीजिए आप, सुधारिए सुधारिए। ये सोमनाथ नहीं था, ये मुलायम सिंह है। चलो करो, करिए सो, करिए सो, चलिए सो, करिए सो, अगर खड़े हो जाते बकवास आप बैठ जाए प्लीज। ये बकवास करते हुए आप अलाउ करते थे, ये क्या? आप बैठ जाए प्लीज। क्या प्लीज करें? अपमान तो होगे, प्लीज करें। मुलायम सिंह जी बैठ। अपमान नहीं कर सकते। अपमान करवाते हैं। रिप्लाई पूरा करना दो प्लीज। करवाइए, क्या बात है? चलिए करिए आप, करिए तो। ये ठीक, अकेले हम काफी। मुलायम सिंह जी आप बैठ। करिए तो अकेले। नो प्लीज आप बैठ। रिप्लाई होने देना, आप बैठ। अपमान तो होने नहीं आए। अभी सोमनाथ चटाजी को बैठा दिया, क्या समझते आप? ये कौन होते हैं? मुझे बैठा दिया गया था। ये सदन चलाएंगे, चलाएं। ये क्या दबा नहीं? वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट यू आर डिस्कसिंग। नो द मिनिस्टर इज ऑनरेबल मिनिस्टर गिवन रिप्लाई। दिस इज नॉट ए वे टू ऑब्जेक्ट टू द मिनिस्टर। लड़ाई करना का तो भाग गए। नो ये बात करते हो। नो ये ठीक नहीं है। नो द मिनिस्टर प्लीज। भागने वाले हम लोग प्लीज नहीं, अभी सोमनाथ चटाजी को भी कर दिया और आप खड़े हो गए, जिसको चाहे उसको कराते। आप बैठ जाए प्लीज। हम अपीलिंग यू, प्लीज प्लीज आप बैठ जाए। नहीं ना, बकवास करते, झूठ और झूठ का पुलंदा यहाँ कर। नो झूठ का रक्षा मंत्री हम जा चलूंगा सर।
सच्चाई को छिपा लोगे, झूठ बोलते हैं और आप अपमान करते हैं। अभी सोमनाथ चटर्जी को मुलायम सिंह जी आप बैठिए प्लीज। नहीं, ये नहीं तक बहुत है, आप मेरे साथ देना पड़ेगा। आप मुझे तो माफी मंगवा, नहीं ये ठीक नहीं है, आप माफी भी मंगवाते हो और जो चाहे जो करें। आप बैठ जाए प्लीज, बैठिए प्लीज, प्लीज टेक योर सीट। नो नहीं बैठेगा, नहीं बैठेंगे, आप निकलवा दिए साहब, नहीं बैठेंगे। ये कोई बात होगी? चलो खड़े हो, देख क्या था बोले, चलिए चलिए बहुमत के बल पर रोको, आइए। ये कोई बात नहीं। नो द मिनिस्टर प्लीज, नो द मिनिस्टर यू कैन कंटिन्यू प्लीज। ऑनरेबल मिनिस्टर यू कैन कंटिन्यू प्लीज। About another member can be made these days on the floor of the house. No, this is happening. What from both sides? आपकी क्या हैसियत है? It is happening. No, it has been happening from both sides. What is it? मैं सिर्फ आपको कायदे कानून के बारे में कहा, जो आप मुझे सिखा। Nobody following the procedure also, I think. आप मुझको कायदा होगा, उसको आपको याद दिला रहा हूँ, उसकी उसी कायदे की। कंडूरी प्लीज। आप मुझको बता रहे थे, मैं उसको याद दिला रहा था। कंडूरी जी मैंने कोई अभद्र बात नहीं कही है, मैंने आपसे कोई अभद्र बात नहीं कंडूरी जी प्लीज। आप फिर बुलवाइए, चलिए बुलवाइए, खड़े हमें निकलवाइए हम। ये बोथ साइड्स कर रहे हैं ना, दोनों बोथ साइड्स कर रहे हैं ना, उसमें क्या करेंगे? आप भी कर रहे हो, वो साइड भी कर रहे हैं ना, वो दोनों कर रहे हैं। हम कोई ना सकते। Nobody bother about the rules. बोथ साइड्स कर रहे हैं ना। मैं खंडूर जी को पूछना चाहता हूँ कि आपने वहाँ लड़ने की आवश्यकता थी, आप ऑर्डर पर आपने लड़ने की आवश्यकता थी, लेकिन आप इधर लड़ रहे हैं। अध्यक्ष जी, ये 10 लाख के अलावा जो भी युद्ध में शहीद हो गए और जो भी उसमें युद्ध हो रहा है ना और जो भी ऐसी छोटे जिनको लगें कि जो किसी काम के लिए काबिल नहीं रहे। सर ये 10 लाख रुपए पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले दिए गए थे। नो प्लीज, इलेक्शन से जस्ट पहले ये नो मिनिस्टर यू कैन कंटिन्यू प्लीज। तो ऐसे उन लोगों को भी 5 लाख रुपया, एक ही तो जमीन के लिए या तो मकान बनाने, अगर मकान हो तो भी, न हो तो भी 5 लाख रुपया जमीन खरीद कर मकान या सीधे मकान या जमीन के लिए देने का इंतजामी किया। फिर अध्यक्ष जी जो युद्ध में घायल हुए, अगर उनका घाव डॉक्टरों का जो माप करने का तरीका होता है कि कितना इनवैलिडिटी इनमें आई है, तो अगर 50% पर हो तो उन्हें 3 लाख रुपया एक्स ग्रासिया, 50% और 75% के तक, 50% से ऊपर और 75 तक हो तो 4.5 लाख रुपया, और 75% से ज़्यादा हो तो उन्हें 6 लाख रुपया देने का इंतज़ामी किया। फिर अध्यक्ष जी शिक्षण के लिए 2 बच्चों का इंतज़ामी, परिवार में अगर एक ही बच्चा हो तो एक का, और एक से ज़्यादा हो तो 2 बच्चों के लिए इंतज़ामी 1-1 लाख रुपया उनके नाम से अलग रखकर उसका ब्याज उन्हें देने का इंतज़ामी किया। और उसके साथ साथ जब वो 17-18 साल के हो जाएंगे, उनकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, तो शादी हो या अन्य किसी काम में उनको पैसा लगाना हो तो वो पैसा जो उनके नाम पर रखा जाता है वो उस उम्र पर उनके हाथ में दिया जाता है, वो देने का इंतजाम किया। फिर अध्यक्ष जी एक समस्या हम लोगों ने देखी कि पहले एक सीमा लगाई थी कि राज्य सरकार अगर कोई भी पैसा दे या और कहां से भी कुछ
पैसा मिले जो जवान शहीद हुए हैं उनके परिवारजनों को, तो उस पर सीमा बांधी थी कि 10 लाख से अधिक कभी नहीं हो सकता है। यानी सरकार केंद्र के तरफ से जो भी पैसा दिया जाएगा वो पैसा, और कोई राज्य सरकार या और कोई भी संस्था जो पैसा देने के लिए आगे आएगी, वो पैसा सब मिलाकर 10 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। तो हमने वो जो सीमा बांधी थी, तो वो सीमा को हमने हटा दिया ताकि राज्य सरकारों ने विशेषकर करगिल और उसके बाद जिस तरह से अपना हाथ आगे बढ़ा दिया, और अनेक ऐसी संस्थाएं, अखबारें या स्वयंसेवी संस्थाएं आदि जिस तरह से जवानों के परिवारों को मदद करने के लिए आगे आई, तो वो पैसा वो जवान वो परिवार को मिले, इसलिए वो पहले से बांधी हुई सीमा को हमने हटा दिया। फिर एक बात सामने आ गई अध्यक्ष जी कि आमतौर पर सेना में जो जाते हैं वो अपना, अगर हमें कोई अपघात हुआ, हम दुनिया से गए, तो फिर किसके हाथ में हमारा कोई भी पेंशन आदि जाना चाहिए, ये अपना विल लिखते हैं। और मोटा मोटी ये तो अपने परिवारजनों का, मतलब अपने बीवी बच्चों का ही नाम से होता है, और शादी नहीं हुई तो अपने मां बाप के नाम से। इस बार एक बात सामने आ गई कि जब ये पैसे जाने लगे तो अनेक स्थानों से जो जवान, जो अधिकारी मारे गए, उनके मां बाप के तरफ से अपनी दर्द भरी कहानियां सामने आ गई कि हमें अभी कोई पूछने वाला नहीं है। हमारा बेटा था, वो अपना खुद का परिवार को भी देखता था, लेकिन अपने मां बाप को भी देखता था, लेकिन अब हमें देखने वाला कोई है नहीं है। तो उन्हें हर महीने में 1,000 रुपया देने का इंतजामी कर दिया, लेकिन हमने इसको महसूस किया कि ये 1,000 रुपये से काम होना नहीं है, इसलिए नेशनल डिफेंस फंड के सामने हमने एक प्रस्ताव रखा। फंड की बैठक पिछले 2 दिनों के पहले होनी थी, लेकिन सदन के काम को लेकर वो बैठक आगे बढ़ा दी गई थी। लेकिन उस बैठक में उस रकम को दूना करके महीने में 2,000 रुपया ऐसे परिवार को भी पहुंचाने का इंतजामी हम कर रहे हैं। 1,000 रुपया आज के दिन दे रहे हैं, लेकिन उसको 2,000 अभी करने जा रहे हैं। फिर अध्यक्ष जी, करगिल के संदर्भ में हर शहीद के परिवार को एक पेट्रोल पंप या तो गैस एजेंसी देने का इंतजामी किया, और उसको लगाने के लिए पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने भी अपना पूरा योगदान दिया, क्योंकि ज़मीन वगैरह का जो दाम है, तो वो खरीदने का जो कार्य है वो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने अपने हाथ में ले लिया, और वो पैसा तो लाखों में जा रहा है। आज किसी भी कस्बे में, किसी भी शहर में जो ज़मीन के दाम हैं, तो वो इंतजामी सरकार की तरफ से हो गई। डीडीए के मकान तो अलग से बन रहे हैं उनको देने के लिए यहाँ पर दिल्ली में। तो इसलिए आपकी जो परेशानी थी कि ये जो पुरानी परंपरा रही, जो पुरानी हालत रही, तो उसी हालत में हम लोग आज भी हैं, तो उसमें नहीं हैं, उससे हम लोग बाहर आए हैं। और एक लंबे अरसे में जिनको कुछ नहीं मिला, 1947 से लेकर 1900 आज ईस्वी 2000 तक कुछ भी नहीं मिला था, उनके लिए भी इस कोष से एक विशेष रकम पहुंचाने का फैसला हमने किया है, और नेशनल डिफेंस फंड से उसके बारे में हमें जब इजाज़त मिलेगी तो वो पैसा जाएगा। तो इसलिए जो पिछले 40-50 वर्षों से जिनके परिवारों ने इंतज़ारी की, या जो आज भी जीवित हैं, उन्होंने इंतज़ारी की कि हमें कोई तो पूछा जाएगा, तो उनको भी न केवल पूछना बल्कि उनकी समस्या को जितना हल करना संभव है वो हल करने का भी फैसला हम लोगों ने किया है, और वो नेशनल डिफेंस फंड उस पर अपना अंतिम निर्णय अभी देने वाली है। मैंने इसमें वो जो
उनके अपने हक के जो पैसे उसके बारे में नहीं बताया, जैसा ग्रेचुइटी है, जैसे उनका इंश्योरेंस है, तो वो सारे चीज़ का यहाँ पर हिसाब हमने नहीं गिना, क्योंकि वो तो हम लोग कोई भी नहीं होते तो भी उनको मिलना ही था, तो इसलिए वो कोई किसी के तरफ से उनको जाने वाली रकम नहीं है। ये सरकार ने फैसले लेकर जो चीज़ें की हैं वो मैंने आपके सामने यहाँ पर रखी। अब ये मेडिकल की एक बात यहाँ पर बड़े मजबूती से माननीय सदस्यों ने छेड़ी है। अब अध्यक्ष जी, इसमें यह बात सही है कि जो अस्पतालें हैं, आर्मी की जो अस्पतालें हैं, वहां जो आज सेवा में हैं उन्हें प्राथमिकता दी जाती है और वो जायज है, उसके बारे में कोई विवाद हो नहीं सकता है कि जो अस्पताल है सेना के लिए बनाई हुई अस्पतालें हैं तो उसमें प्राथमिकता तो उन्हीं को दी जाएगी जो आज सेवा में हैं। और विशेषकर जो ऐसे अस्पतालें हैं उत्तर हिंदुस्तान में, पंजाब और चंडीगढ़ और उससे और उत्तर में, तो ऐसे अस्पतालों में तो ये और आवश्यक होता है, क्योंकि वहां तो हर दिन कुछ ना कुछ कैजुअलिटीज भी आती हैं और आए हुए लोग कोई उसी दिन उनको डिस्चार्ज करने की स्थिति नहीं होती, अस्पतालों में जगह की कमी होती है। लेकिन जो एक्स सर्विसमैन हैं, इन अस्पतालों में उन्हें इलाज का इंतजामी है। आउटडोर के लिए तो किसी प्रकार का कहां भी हर एक सेंट्रल गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने आपको दखलबाजी कर रहे हैं, उनका हर एक का हक बनता है। तो एक सर्विसमैन के लिए आप मिलिट्री हॉस्पिटल के भरोसे क्यों छोड़ते हो? कोई मिलिट्री हॉस्पिटल का नहीं देखता, आपसे ठीक कहता हूँ। अब राजस्थान में जोधपुर में एक मिलिट्री हॉस्पिटल है, उसके इर्द गिर्द 200 किलोमीटर में लोग वहाँ आते हैं, कोई उनको पूछता उसको। अब हकीकत इसमें आप कुछ अनाउंस करिए आज, ये उनका फंडामेंटल राइट है उनको रिटायर होने के बाद में। सारा एक सर्विसमैन की तरह हिंदुस्तान जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है उनको सबको मिलता है, एक सर्विस क्यों नहीं मिलता है? मिलिट्री के भरोसे क्यों छोड़ते हो? मिलिट्री वाले नहीं देखते हैं सर्विस, वो सर्विस वाले को देखते हैं। ठीक बात, हकीकत बात है साहब, इसको ठीक बात आप ठीक बात है, इसको मंजूर करो और कुछ अनाउंसमेंट करो आज यहाँ पर। बहुत अधिकार और हक लोगों के हैं जो हम लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहले जीने का अधिकार है और उसके लिए रोजगार का हक होना चाहिए, लेकिन 4 करोड़ 16 लाख लोग आज के दिन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में पढ़े लिखे लोगों के नाम दर्ज हैं। तो ये सब समस्याएं हैं, तो और ये समस्या आज की समस्या नहीं है। और ये बात चल रही है साहब, मैं दूसरों के करोड़ों के बात नहीं कर रहा। ओहो, अंततोगत्वा हर चीज के लिए पैसे की आवश्यकता है, हर चीज के लिए पैसे की आवश्यकता है, और वो पैसा इसी पार्लियामेंट ने देना है। ये पार्लियामेंट अगर कल मुझे वो पैसा दे और कहे कि हर गांव में एक अस्पताल होना चाहिए, अगर वो 1 साल में होने वाला काम है, हम उसको 6 महीने में उसको कोई अलाउंस दे दो। मैं ये थोड़ी कहता हूं जैसे सिविल का मिलता है, तभी तो उनके दे दो। मिलिट्री हॉस्पिटल के भरोसे क्यों छोड़ते हैं इनको? हम भी तो ये सब चीजें चाहते हैं जो आप कह रहे हैं। मिसेस सोनाराम प्लीज, ये आज लास्ट टुडे इज द लास्ट डे ना, यू हैव वन मोर कॉलिंग अटेंशन आल्सो। तो अध्यक्ष हम ये बात को, ये जो इलाज का जो मामला है, क्योंकि यह है बहुत ही गंभीर प्रश्न है, क्योंकि जो शहर में रहने वाले लोग हैं उनको ये बड़े अस्पतालों में जाने का मौका मिलता है। हम सेना की बात कर रहे हैं, जो अधिकारी हैं। नो, ये कैसे है ना, ये ठीक नहीं है, नो ये ऐसे नहीं है। लेकिन जो गाँवों में जो जवान है, अधिकारी हैं, अधिकारी तो आमतौर पर गाँवों में बहुत ही कम है, लेकिन जो जवान हैं और उनकी संख्या लाखों में है, हमने बता दिया कि 15 लाख एक्स सर्विसमैन हैं, तो उन्हें वहां पर हर जगह पर कोई अस्पताल का इंतजामी नहीं है, उन्हें सैकड़ों किलोमीटर दूरी पर जाना पड़ता है, हम इसको जानते हैं। लेकिन अध्यक्ष जी इसमें से उपाय अगर निकालना हो तो एक ही तो हर जिले में एक अस्पताल बनाओ। अब हर जिले में बनाने का भी मतलब है कि ऐसे बड़े जिले हमारे यहाँ की, वहां भी बहुत चलकर आना पड़ेगा, या जहां पर फौजियों की कोई बहुत अधिक आबादी है उस इलाके में बनाओ। और ये सब चीज के लिए हम तैयार हैं। ये नो प्लीज, क्या कर रहे हैं नहीं, ठीक नहीं है ये, ठीक। नो प्लीज, मेरी तरफ से एक सुझाव है, एक सवाल पूछना चाहता हूँ प्लीज।
मुझे ऐसा लग रहा है कि आज तक इन लोगों को ऐसे अस्पताल बनाने के लिए हमने इनका हाथ पांव बांध कर रखा था वाले लोगों को और आज हमारे बारे में वो शिकायत कर रहे हैं कि क्यों नहीं बना रहे। लेकिन जो नौजवान हमने तो हाथ पांव बांध कर नहीं रखा था। कारगिल युद्ध के पहले कारगिल इलाका में मृत्युवरण की उन लोगों के लिए क्या करने जा रहे हैं? मिस्टर मुतियार प्लीज। I am not. No. See, the way I am being obstructed, the way the questions are thrown at me is suggestive that what should have been done I am not doing. Implied in it. But I have accepted. No. I am not looking at it politically at all. Sorry. I am not looking at anything politically. I am only making the point, the way the issue is posed, it is as if that all these things should have been done, but you are not doing them. No, not like but that. There is no money. Not like that, not like that. I won't let Parliament sanction the money, we will build all these hospitals. अध्यक्ष जी, एक बात ये कही गई कि जवान की हालत अध्यक्ष एक बात ये कही गई कि सर्विसेज में जो पेंशन है और फैमिली पेंशन और सिविलियन का जो फैमिली पेंशन है उसमें बहुत अंतर है। अंतर नहीं है, दोनों को 30% ही मिलता है। हम नहीं जानते हैं कि ये अंतर की बात कहाँ से आ गई। और जहाँ तक सेना के जवान की तनख्वाह और चपरासी की तनख्वाह में यहाँ पर तुलना की गई तो वो भी जवान के साथ अन्याय है। जवान की तनख्वाह चपरासी की तनख्वाह से ज़्यादा है। हाँ। लेकिन पेंशन के बारे में जो बात यहाँ, ये बात बहुत स्पष्ट कही गई थी माननीय सदस्यों की ओर से कि सिविलियन को 30%, सिविलियन विडो और आर्मी विडो को 20 से 25%, चपरासी की तनख्वाह ज़्यादा और जवान की तनख्वाह कम। तो ये बातों में तथ्य नहीं है। और अगर आपके पास कोई अलग जानकारी हो तो ज़रूर मुझे भेजने का कष्ट करेंगे, तो हम उसका जवाब आपको दे देंगे। एक प्रस्ताव ये भी आया कि रोजगार के संदर्भ में कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जो रिटायर होकर जवान बाहर आ जाते हैं, डिमोबिलाइज होकर आते हैं, उनको हम लोग भर्ती करें। अध्यक्ष, एक तो आज ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में 1.5 लाख कर्मचारी हैं और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 33 नहीं 39 है और उनमें 1.5 लाख कर्मचारी हैं। और अब उसमें वेस्टेज जो भी हो, लेकिन आज वहाँ पर जो उम्र का एवरेज उम्र जो है वो 50 साल है, 50 साल है। और अगर हम 40 साल की उम्र वालों को ही रिटायर वहाँ पर रिक्रूट करना शुरू करें तो फिर ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन का जो मामला है और वो बहुत ज़रूरी है, तो उसमें हम लोग बड़ी तकलीफ महसूस करेंगे। इसलिए रोज़गार के और उपाय खोजना ज़रूरी है। अब एक तो ये बात शिकायत यहाँ पर की गई कि ये जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वे लोग तो सैकड़ों करोड़ों में कमाते हैं लेकिन बहुत कम देते हैं। लेकिन मोटी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो तो सेना के ही रिटायर हुए अधिकारियों के जरिए चलाई जाती हैं। और हम लोगों का जो प्रयास है वो ये है कि वे लोग सिक्योरिटी एजेंसीज बनावे और जवानों को जो डिमोबिलाइज होकर बाहर आए हैं उनको वो सिक्योरिटी एजेंसियों में रखें। ये हम लोगों का लगातार एक लंबे अरसे से चला हुआ काम है और इसको और बढ़ाने का हम लोगों का प्रयास है। अब किसी अगर एजेंसी के जरिए कोई गलत काम होता हो तो हम ज़रूर उसकी जांच कर लेंगे और उसको सुधारने का काम हम करेंगे। अध्यक्ष जी,
मुझे लगता है कि मैंने जो प्रश्न यहाँ पर उठे तो सबका नाम न लेते हुए, लेकिन वो प्रश्नों का जो भी जवाब देना आवश्यक था वो जवाब दे दिया। आप कंप्लीट, आप समाप्त कर। या झुंझुनू जिले में एक को भी मिला है क्या तक जहाँ 60 से ज्यादा जवान कारगिल में शहीद हुए? Now item number 19. Have you completed your reply? Judge, have you completed? Sir, I have finished.